So considering I'm audible, we are into the second chapter of physics. Third chapter has been initiated by Shankar sir, but then he will continue third, fourth chapter. I will finish. I have already finished first, and I will be finishing second. Okay. मॅडम कशासाठी खाली रेकॉर्डिंग चालू झालं हा so I'll present my screen. So my screen sharing is visible. Just put in chat box. Okay, thank you. We'll get into the chapter now. This is where we were. You all know mathematical methods we were discussing. And then probably we have Suraj wants my screen to be horizontal. So okay, we'll make it horizontal. So we have finished this part. We have come into the unit vector finished. Then addition subtraction we have finished. I think we have reached up to the triangle law and we were about to enter the parallelogram, correct? So associative and all we have finished. This is where we are supposed to enter. Am I correct? It is a law of parallelogram of vectors. Somebody switch on mic and tell me. Yes, sir. Okay. So we start from this particular place. As such, this particular lesson is very simple. It is making you aware about the vector addition, their multiplication, and some other properties like this particular finding out the results. And so we'll get into this law of parallelogram of vectors. Another geometrical method of adding two vectors is called parallelogram law of vectors addition, which is stated as follows. Kindly remember this forever and don't forget that this particular thing is okay. I was just checking whether my network is there or not. If two vectors of same type originating from same point, tail at the same point, are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, their resultant vector is given in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram starting from the same point as shown in a figure 2.7. So it's compulsory that vector p bar is starting at O and going towards A. Why it is extended to the D, that we'll see later. If there is some another vector which is starting from O and going towards B, that is q bar, then the resultant obvious r bar is equal to p bar plus q bar, that is a vectorial addition of these two vectors which are the two sides of parallelogram starting at origin O. This is what the mathematical or geometrical representation of what I read just few seconds back. So you will be reading this, you will be remembering this as a law of parallelogram of vectors. And ये चीज आपको जो समझ में आई उसका मैं एक्सटेंडेड वर्जन आपको थोड़ा बता देता हूं कि यहाँ पे ये जो ओ ए मतलब पी बार के आगे डी है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रायंगल के लिए अगर उसकी हाइट चुननी है या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत होती है. तो राइट एंगल ट्रायंगल पाने के लिए हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जो रिजल्टेंट वेक्टर से ड्रॉप किया हुआ परपेंडिकुलर टू द बेस OD है. OD is having
in it OA which is the vector P bar. ओके, मतलब आप समझिए कि OD नाम का जो एक साइड है, एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल या चौकोन या फिर ट्रायंगल का, जिसमें OA बार भी है जो P बार को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ OD में P बार के आगे AD जोड़ा गया है और उस AD का वहां जो उसके साथ ऊपर वाले C पॉइंट के साथ लाइन जोड़ा गया है ट्रायंगल बनाने के लिए, वो एंगल बना रहा है थीटा, जबकि ये जो एंगल है ओ P बार का R के साथ वो है अल्फा, और जो एक्चुअल पैरेललोग्राम का एंगल है मतलब Q बार का P बार के साथ वो है थीटा। तो अगर आपको रिकलेक्ट कर रहे होंगे आप 9वीं 10वीं की बातें, तो आपको ये जरूर पता होगा कि कोई भी चीज में जब हम लोग इस तरीके से लाइन खींचते हैं, इस तरीके से, तो ये तो पैरेललोग्राम बन गया इमीडिएटली, बट ये एंगल सेम रहेगा, ये एंगल के साथ ये एंगल सेम रहेगा। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे थीटा दिखा रहा हूं तो ये थीटा है, जबकि मेरा ये जो रिजल्टेंट है ये अल्फा है, और इसको उन्होंने कुछ और देने का सोचेंगे तो चलेगा। बट मैं यहां से अगर इस तरीके से अगर एक परपेंडिकुलर निकालूं तो ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, और मुझे ये हाइट जो है ये h मदद कर सकता है कहीं भी, या फिर मैं इस ट्रायंगल के साथ, मतलब इस ट्रायंगल के साथ बीइंग राइट एंगल पाइथागोरस यूज कर सकता हूं, या इस ट्रायंगल के साथ भी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं। तो ये अगर हम करना चाहते हैं तो हमको ये चीज अच्छे से समझनी होगी। तो लेट्स गेट इनटू दिस पार्ट। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। फ्रॉम फिगर 2.7 वेक्टर ओ ए बार P which is nothing but P bar and vector OB bar which is nothing but Q bar represents two vectors originating from point O inclined to each other at angle theta. If we complete the parallelogram, then occurring according to this law, diagonal OC represents the resultant vector. इतनी सिंपल बात, आप सब लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, अच्छे मार्क्स है तो समझ में आ रही होगी, इसलिए मैं दौड़ रहा हूं, बट सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, let us drop a perpendicular that is nothing but OD, CD। तो CD यहाँ जो दिखाया गया है वो परपेंडिकुलर है, और आगे की प्रॉपर्टीज आप थोड़ा ध्यान में रखिए कि P बार कहां तक दिया है, Q बार कहां तक दिया है, R बार कहां तक दिया है, अल्फा किसके बीच का एंगल है, बीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा किसके बीच का एंगल है। तो ये सब चीज से हमको बार बार पीछे आना नहीं पड़ेगा। मुझे कॉल आ रही है, अटेंड करनी पड़ेगी। ओके सॉरी, मैं वो मेरा ऑफिस का कॉल था। अभी ऑफिस से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता है, ये आप सबको भी पता है। अभी मेरी आवाज ठीक से आ रही है? चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। ओके ठीक है, बस 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 ठीक है। बस 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 ठीक है। वी विल डू वन थिंग, वी विल कम आउट ऑफ दिस। मेरा स्क्रीन शेयरिंग आपको दिख रहा है? वो मैं पकड़ के चलता हूँ, एंड देन विल गो इनटू द जो हम देख रहे थे। तो हम यहाँ थे और सडनली मेरा कॉल आ गया, तो हमको उसको टर्न भी करना है, मैं भूल गया था, सॉरी। तो drop perpendicular from C to reach OA extended at a D
इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ओडीसी बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अभी ये चीज मैं वो व्हाइट बोर्ड जो था उस पे भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट मैं उससे बेहतर काम यही करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि इससे आप लोगों को थोड़ा मदद मिलेगा कि हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं। तो बेसिकली हम ये चीज की बात कर रहे हैं, ये चीज की, ठीक है। तो ये ओ है, इधर कोई ए है, फिर यहाँ पे सी है, ये डी है, फिर ये एंगल की बात कर रहे हैं तो ये अल्फा है, ये एंगल बीटा है, जबकि ये पूरा एंगल थीटा है। तो यहाँ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। OC square, you know, it's a hypotenuse, so OC square will be OD square plus DC square, जो मैंने आपसे बात की थी। बट OD क्या है, जैसे हमने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन लिया था कि OA प्लस AD, तो OA प्लस AD कर दिया, तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD, जो एक्सपांशन है किसी भी स्क्वायर का, अगर दो अंदर ये हो एंटिटीज, तो उस तरीके से उसका एक्सपांशन होता है कि 2AB होता है। तो 2OA AD प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अभी हम क्या बात करेंगे, ये यहाँ मिटाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा लगता है, मूव करूंगा तो, है ना। यस, मुश्किल है तो मुझे हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर इंटू 2OA AD प्लस AC स्क्वायर। तो छोटे राइट एंगल ट्रायंगल से AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हो गया सीधा AC स्क्वायर। आप देखना चाहते तो मैं पीछे जाना चाहूंगा। ये AC है, ये AD है, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं हम, और ये बात कर रहे हैं, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो भाई हाइपोटेनियस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, CD स्क्वायर। तो ये जो हमने कारनामा किया, इस चीज को हम लोग वहां ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली अपना जो इक्वेशन है इट विल गेट लिटिल इजियर, जो उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है, हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो AD स्क्वायर के चलते OC स्क्वायर हो गया OA स्क्वायर 2OA AD प्लस AC स्क्वायर। अभी वो बोल रहे हैं कि अल्सो OA इज इक्वल टू P बार, AC इज इक्वल टू OB बार, AC बार इज इक्वल टू OB बार इज इक्वल टू Q बार, और OC बार इज इक्वल टू R बार। तो मतलब इन ट्रायंगल ADC अगर cos थीटा sin थीटा वाला खेल करे तो हमको समझ में आ जाएगा कि AD बाय AC इज नथिंग बट cos थीटा। तो आपको AD मालूम है, कौन सा था AD? AD था ये वाला लाइन। कौन सा वाला? ये वाला लाइन था जो ये वाले में यहां से यहां, ये हमने ऊपर C लेके गए थे, तो ये हो गया था A, ये हो गया था D। तो AD, फिर AC कौन था? ये हाइपोटेनियस C वाला, और ये AD था, और ये एंगल थीटा था। तो cos थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट साइड बाय योर हाइपोटेनियस। तो ऑटोमेटिकली cos थीटा इज इक्वल टू AD बाय AC हो गया। इतना समझ में आ रहा है? ऐसे में पकड़ के चलता। तो अगर मैं बोलूं ये चीज हमने किया तो सॉरी, सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 2.7, OA मिल कौन से वाला है? ये 2.7 ये है। OC मिला, OA मिला, AC मिला, OA AD एक फॉर्म में मिला, तो दोनों को सबको पकड़ लिया तो हमको मिला R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। अभी R इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा ये सब लोग। ये जो चीज मिली ये वेक्टोरियल नोटेशंस नहीं है, ये स्केलर नोटेशंस है, क्योंकि यहाँ पे P का मैग्नीट्यूड चलो 5 है, Q का चलो मान लेते हैं 4 है। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 25, 4 इंटू 5 20 इंटू 2 40 कॉस थीटा, और थीटा मान लेते हैं टेम्परली 40-50 डिग्री है।
तो इससे हमको जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, दैट न्यूमेरिकल वैल्यू गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर बार। आप बोलोगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर व्हाइट बोर्ड किधर गया, ये व्हाइट बोर्ड में गया, यहाँ पे जैसे सपोज मेरे पास एक इस तरीके का फोर्स लग रहा है, एक इस तरीके का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे अगर P फोर्स लग रहा है, यहाँ पे अगर Q फोर्स लग रहा है, तो एक्चुअली उनका रिजल्टेंट जो है वो ये है। मतलब इस चीज को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं। तो ये जो R है, ये अगर कुछ 5 था, ये अगर कुछ 4 था, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ये R है, जो तकरीबन 5 और 4 से बढ़ के कुछ 5.5 जैसा होगा। बट अभी हम इसमें जाएंगे नहीं, सिर्फ हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कैलकुलेशन किस चीज का चल रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट स्पीड, सब कुछ यहाँ आर में दिखाया जा रहा है अगर पी और क्यू दो चीजें काम करें। नाउ इक्वेशन टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, अभी वेक्टर चीज में आ गया हम लोग। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर बार, वी विल हैव टू फाइंड द एंगल अल्फा। आपने देखा ही यहाँ पे पीछे ये जो चीज है वो आर का एंगल है अल्फा, ये निकाल लिया तो डायरेक्शन मिल गया। अभी आर निकालने के लिए फिर से वही जगलरी करनी है जो ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ी है। तो उन्होंने फिर से वो ट्रायंगल में हमको पकड़ के लेके आए, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वी हैव टू फाइंड अल्फा, तो ओडीसी में लेके आए। ओडीसी कौन सा वाला एंगल था, ओडीसी था ओ डी और सी, तो tan अल्फा की वैल्यू वो लोग निकाल रहे हैं। तो ओडीसी एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, उसमें tan अल्फा क्या है, sin थीटा क्या है, ओके, फिर cos थीटा क्या है। तो हम चलते हैं फिर से वही फिगर में। ओ डी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हमको tan अल्फा निकालना है, तो जो सामने की साइड है सी डी डिवाइडेड बाय ओ डी, ओके। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा इज नथिंग बट सामने की साइड, सामने की साइड दैट इज सी डी अपॉन एडजेसेंट साइड मतलब एडी, नहीं साइन के मामले में हाइपोटेन्यूज दैट इज सी ए और ए सी, और कॉस के मामले में एडजेसेंट साइड मतलब एडी डिवाइडेड बाय ए सी। अभी अभी ये मत बोलना कि ये सब चीज पता नहीं है, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, जो मैं यहाँ है वही ट्रायंगल ले लेता हूँ, ओके, ये वाला। तो इस ट्रायंगल में अगर ये चीज अल्फा है या थीटा है, तो अगर मैं इसको ओ बोलता हूँ, इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको मैं सी बोलता हूँ, बट ये ए नहीं है, ये डी है अपना, तो इस मामले में साइन, सॉरी साइन नहीं लेना है हमको, हमको tan लेना है। तो tan इज नथिंग बट, tan अल्फा इज नथिंग बट सी डी डिवाइडेड बाय ओ डी। वही अगर मैं tan मतलब क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो यहाँ पे अगर आप ले रहे हो साइन, सपोज अब यहाँ नहीं है वो है यहाँ पे थीटा, और ये है अपना ए, तो थीटा का साइन का थीटा निकालना है, तो ये राइट एंगल साइड है, तो मतलब थीटा निकालने के लिए हमको जाना पड़ेगा साइन थीटा इज इक्वल टू सामने की साइड मतलब सी डी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस विच इज ए सी। अगर आप ये सारी चीजें पहले से देखे रहते और आपको इसमें कुछ डाउट रहता, तो जब मैं बता रहा हूं तो शायद क्लैरिटी अच्छी आती, बट आपने वो किया कि नहीं मुझे नहीं पता, तो वह मैंने ओ ए सी ए डी सी दिखाया, और अभी इसी को यहाँ इन लोगों ने जो बताया है उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करें। tan alpha is we have no already studied dc by od, dc तो भाई उसकी हाइट है, सामने वाली जो हमने नए सिरे से जो बनाई, od जो है, जो o से शुरू होके a का स्टॉप लेके फिर d तक पहुंच रही है, वो oa प्लस ad है, तो उसको वहीं पे छोड़ देते हैं इक्वेशन 2.9 लिख के, क्योंकि इसमें बहुत सारे अननोन है। फिगर में फिर से जाते हैं जहां साइन थीटा वाले चीज में घुस जाते हैं। साइन थीटा के मामले में मैंने क्या बोला था कि जो सामने अल्टीट्यूड ऊंचाई बनाई गई डीसी नाम की, डिवाइडेड बाय एसी मतलब हाइपोटेन्यूस आएगा,
तो DC will become AC by sin theta, जबकि AC itself is a Q bar. तो AC DC is nothing but AC into मतलब Q into sin theta. If I go for AD, तो AC cos theta is equal to Q into cos theta. So AD is equal to AC cos theta and AC is Q. So अगर मैं बोलूं कि OA bar is P bar, substituting in equation 2.9, DC मिला, OA मिला, AD मिला, तो भाई डाल दो, तो tan अल्फा इज नथिंग बट Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q sin थीटा। अगर अल्फा इस तरफ है तो उस तरफ जाके tan इनवर्स हो जाएगा, तो हमको अल्फा की वैल्यू मिल गई अगर हमारे पास Q है, P है और थीटा है। इन सबको हम यहां डाल देंगे तो हमको अल्फा यानी वेक्टर जो रिजल्टेंट था उसका डायरेक्शन भी मिल गया। If beta is angle between R and Q, it can be simply like this, tan inverse of, आप यहां देखेंगे P sin थीटा है, Q प्लस P cos थीटा, उस मामले में था Q sin थीटा और P प्लस Q cos थीटा। तो ये कौन सा वेक्टर किस एंगल के साथ लगा हुआ है उसके हिसाब से उस एंगल के एक्सप्रेशन के मतलब मैथमेटिकल फार्मूलेशन में P और Q अपनी जगह बदलते हैं। ये बाय हार्ट करने की चीज नहीं है, याद रखना है तो इतना ही कि when we are talking about resultant R which is making angle alpha with its first vector P bar, then if I am going for calculation of alpha, then alpha will be tan inverse of opposite side vector which is Q bar into sin theta, which is nothing but the angle between P and Q bar divided by P bar, which is that particular vector which is making angle with the resultant of alpha plus Q into cos theta। ये मैंने पिछले का बताया, अल्फा वाले का, बीटा वाले का एग्जैक्टली उल्टा होता है। ये आपको समझ में आ जाएगा जब आपको अल्फा समझ में आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने एक उदाहरण दे दिया, उदाहरण सब लोग अपने दिमाग में शांति से पढ़ो, पढ़ने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाला है क्योंकि सिंपल सा ट्रायंगल लॉ वाला एग्जांपल है। पढ़ लीजिए। अभी यहाँ इन्होंने उदाहरण का सॉल्यूशन दिया, बट उस सॉल्यूशन में न जाते हुए मैं आपके लिए कुछ ड्रॉ करना चाहूँ। सोचिए, ये मैंने कुछ बना दिया और मैंने बोल दिया ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो ऑटोमेटिकली ये वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ कौन सा हुआ? ये हुआ नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अभी इन्होंने यहाँ पे बोला कि कुछ चीज ईस्टर्ली मतलब ईस्ट की तरफ जा रही है। कौन? स्ट्रीम किस तरफ? इस तरफ जा रहा है। ओके, कोई आ रहा है किस तरफ से? नॉर्थ की तरफ जाने के लिए। तो भाई ये आ गया। यही चीज उन्होंने यहाँ पे दिखाई। कोई चीज आपको मैं जैसे यहाँ दिखा रहा हूं ना, मोटा मोटा करके, और उसको एरो बना रहा हूं। सोचिए इस तरीके से कोई बोट जाने की कोशिश कर रही है नॉर्थ की तरफ, जबकि जो बहाव मतलब जो फ्लो है स्ट्रीम का वो कहीं से आ रहा है और उसको इस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो व्हाट विल हैपन? फाइनली इट विल गो इन दिस डायरेक्शन। ये समझ में आना जरूरी है कि भाई ड्रॉ क्या करना है, कैसे ड्रॉ करना है। आप बोलोगे सपोज मैं यहां ड्रॉ करता तो ये भाई खींच रहा है और ये मुझे ऐसा लेके जा रहा है, तो इट इज इम्पॉसिबल क्योंकि नीचे की जो लाइन है वो ऑलरेडी उसको धक्का मार चुकी, फिर वो आगे आ गया। तो ये समझना जरूरी है कि जब वो तकलीफ सह रहा है, मतलब यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कोई चीज ऐसे जा रही थी तो उसको धक्का लगने के कारण थोड़ी ऐसे हुई, थोड़ी ऐसे हुई, थोड़ी ऐसे हुई, थोड़ी ऐसे हुई, थोड़ी ऐसे हुई। कौन धक्का दे रहा है? धक्का दे रहा है ये जो स्ट्रीम इस तरफ उसको धक्का देते जा रहा है वो है। पहले थोड़ा मूवमेंट हुआ, बाद में थोड़ा मूवमेंट हुआ, ऐसे करते करते उसका बड़ा मूवमेंट हुआ जब वो यस पॉइंट पे आया। तो
ये जो चीज है वो एक कंट्रीब्यूशन है, ये उसका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो इस स्पीड से आ रहा है, वो 20 है, ये 5 है, तो भाई ये कितना है? ऑब्वियसली राइट एंगल के हिसाब से जाओगे तो ये 20 से भी थोड़ा ज्यादा होगा। ऑब्वियसली वो ज्यादा जो हुआ वो 5 ने कंट्रीब्यूट किया। और रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या रहेगा? ऑब्वियसली रिजल्टेंट डायरेक्शन विल बी दिस पर्टिकुलर एंगल। अभी आप सब जिस टाइप के बच्चे हो, आपसे तो कुछ बोलने से मतलब नहीं, ना कभी किसी ने स्विमिंग किया है, ना किसी को ये सब चीजें पता है। आप सोचो कि बहाव आ रहा है, आप राइट एंगल पे जंप किए और अपोजिट शोर पे, मतलब सोचिए ये नदी है, इस तरीके से बह रही है, आपने यहाँ से जंप किया और आप इस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, तो दुनिया का कोई भी तैराक इधर नहीं पहुंचेगा, वो इधर पहुंचेगा। Okay, so his destination may be this, but he will reach here. तो ये चीज प्रैक्टिकली यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। होपफुली मैं आपको समझा पाया रहूंगा, ऐसा पकड़ लेता हूँ। पहले इसको साफ कर लेना, तो बहुत दिमाग खाएगा सब चीज। रुकिए, हो जाने दीजिए। डन। ओके, तो इसी मद्देनजर हम देखेंगे इस उदाहरण को। क्या लिखा गया? The resultant velocity r bar of the boat can be obtained by adding two velocities shown. Magnitude of the resultant velocity is calculated as follows. Simple. पाइथागोरस का लॉ लगा दिया, सीधा मल्टीप्लाई किया और स्क्वायर किया, प्लस किया, तो 425 आया। 425 को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपको इस तरीके से आएगा। ये इसके चलते थोड़ा ये 425 वगैरह मैं सॉल्व कर पाऊंगा। आपको मालूम है, इसको आपको अगर करना है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। ये 5 से इसको डिवाइड हो सकता है, तो 5 इंटू मतलब 40 25, तो 5 इंटू 85 हो गया। तो 85 कितना होता है? 17 50 85। तो 5 इंटू 5 इंटू 17 हो गया। तो 17 का तो कोई भाई रूट नहीं होता है, तो ये आ गया 5 इंटू रूट 17। 17 का रूट नहीं होता, बट 16 का रूट आपको पता है जो 4 है, तो 17 का 4 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। तो 5 से जब 4 पॉइंट समथिंग समथिंग को मल्टीप्लाई करोगे तो 20 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी द आंसर। तो लेट अस चेक क्या वही आंसर है। तो आंसर वही है 20.61। अभी मैं टीचर हूं, मुझे तो एग्जाम लिखनी नहीं है, तो आई विल गो ऑलवेज इन अप्रोक्सीमेशन। बट अगर आप ठीक से करना चाहते हो तो आपको उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये सब लैगारिथम से अच्छे से होता है। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज, ऑब्वियसली ये अल्फा है, तो ये 5 और ये 20, तो tan अल्फा विल बी 5/20। तो ऑब्वियसली 5/20 मतलब 1/4, तो 0.25। tan इनवर्स ऑफ 0.25 विल बी अप्रोक्सीमेटली 14 डिग्री। ये भी आपको tan टेबल से आ जाएगा। सीखने वाली बात यह है कि आपको इमीडिएटली प्रैक्टिकली समझेगा। अगर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर हो जाता तो भी, और 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर हो जाता तो भी कुछ इफेक्ट होने वाला था। जैसे 5 का 7 हो जाता तो अल्फा बढ़ जाता, ओके। 7 का 10 हो जाता तो अल्फा बढ़ जाता। अगर 20 का 25 हो जाता तो अल्फा घट जाता, बट फिर भी क्या बढ़ता था? ये डिस्टेंस बढ़ने के कारण, AO बढ़ने के कारण आपका जो एक्चुअल आर है वो बढ़ जाता। तो इस चीज को अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिकली सीखना चालू कर दे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा भविष्य के लिए। एक बार चैट बॉक्स देख लेते हैं कि सबको समझ में आया कि नहीं। we have used Pythagoras theorem, right sir? Then should we use the triangle law? क्या होता है ना, ट्रायंगल लॉ नाम की जो चीज है वो एडिटिव्स के लिए है, बट व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट ऑब्वियसली इट विल रीच टू द पाइथागोरस ओनली। व्हेन यू से आई एम फाइंडिंग सम रिजल्टेंट, देन द लॉज एप्लीकेबल टू, यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड के लिए और डायरेक्शन के लिए एक्चुअली ट्रायंगल लॉ नहीं इस्तेमाल किया है, पैरेललोग्राम लॉ इस्तेमाल किया। तो पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनीथिंग व्हिच हैज गॉट राइट एंगल थिंग, बट राइट एंगल थिंग इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, नहीं तो ट्रायंगल का सॉल्यूशन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हाउ यू विल कनेक्ट थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल
without having any analogy or mathematical expression available for it. तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक अच्छा अवेलेबल है। तो ये जो चीज थी इस एग्जांपल में, हमको 90 डिग्री के 90 डिग्री पता था, तो हमने उसके लिए पाइथागोरन थ्योरम का फंडामेंटल यूज किया, बट लॉ यूज किया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम टाइप का। ओके, when should we use the triangle law? Triangle law is to be used only when the things are given in a additive or associative way. Okay, इस पर्टिकुलर मामले में इस तरीके से ट्रायंगल लॉ एप्लीकेबल आपको नहीं होगा। when you will read this in a deep probably will get to know. Okay, और कुछ किसी को प्रॉब्लम? बाकी लोग लिखो। ओके, अभी एग्जाम्पल की बात करें तो हमको थोड़ा शायद पीछे ही जाना पड़ेगा जहां हम ट्रायंगल लॉ में चलते हैं। ट्रायंगल लॉ में चलो। यू कैन सी हियर, यहाँ पे इतने सारे ट्रायंगल हैं। ओके, यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रायंगल यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। तो यहाँ पे उन्होंने बोला AC बार प्लस CB बार इज इक्वल टू AB बार। फ्रॉम द गिवन फिगर डिटरमाइन दिस। ओके, डिटरमाइन दिस। फिर इन्होंने वेक्टर यूनिट वेक्टर्स में लाया क्या? हाँ, यूनिट वेक्टर्स में लाया, तो इसलिए तुमको यहाँ जानकारी नहीं मिल रही। See, really speaking, triangle law as such will be added. यहाँ पे जो उदाहरण है, एक्सप्रेस वेक्टर AC बार इन टर्म्स ऑफ द AB एंड CB, तो यहाँ पे वेक्टर साइन उसका एसोसिएटेड है। बट इस पर्टिकुलर ट्रायंगल लॉ में तुमको कहीं भी उसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने का प्रोसीजर बताया क्या? नहीं। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए तुमको ट्रायंगल लॉ यूजफुल नहीं होगा। यू हैव टू गो इन अ पैरेललोग्राम लॉ। तो ट्रायंगल लॉ जहां तक एडिटिव प्रॉपर्टीज चाहिए कि रिजल्टेंट वेक्टर अगर मैं इन दो चीज से दे रहा हूं, AC बार एंड CB बार, then obviously its a closing direction will be AB bar, which is a resultant. But then what about the exact direction of that particular thing? तो जो ट्रायंगल ने दिखाया वो, बट इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसको जोड़ के इसका एक्सटेंडेड वर्जन इन एक्यूरेट फॉर्म इज अ पैरेललोग्राम। तो ट्रायंगल लॉ एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज तक सीमित रहेगा, बट जब आपको रिजल्टेंट निकालने की बारी आएगी तो रिजल्टेंट निकालने के लिए ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड ऑफ द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट यू विल बी यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ओनली, दे विल नॉट बी यूज ऑफ ट्रायंगल लॉ। कहाँ है संकट? और कुछ of triangle law? Okay sir, so if we have to find vector then we should use no Sankalp, we will not be using, we will be using it for the properties of the being associativeness of the vectors and the distributive nature of the vector. कुछ भी निकालना है तो हमको मैग्नीट्यूड के लिए किसी भी हालत में पैरेललोग्राम में ही जाना पड़ेगा, और रिजल्टेंट का एंगल निकालने के लिए हमको पैरेललोग्राम या उससे जुड़ी एंगुलर कैलकुलेशन बाय ट्रिग्नोमेट्री में ही जाना पड़ेगा। और ट्रिग्नोमेट्री आ गई तो ट्रिग्नोमेट्री विल नॉट बी एसोसिएटेड विद द एब्ट्यूस और एक्यूट ट्रायंगल, इट विल बी एसोसिएटेड विद अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो वो वहां सिर्फ हमने एक से दो वेक्टर्स को, और दो वेक्टर बोलिए तो इमीडिएट उसका फर्स्ट इंप्रेशन होता है ट्रायंगल, और सेकंड इंप्रेशन होता है कि भाई रिजल्टेंट निकालना है तो एंगल निकालना। तो इनिशियल बेसिक्स सीखने के लिए हमने वेक्टर्स के लिए ट्रायंगल लॉ यूज किया। यू विल नेवर फाइंड इट मोस्टली यूज्ड इन योर नेक्स्ट पार्ट आल्सो, बट फिर भी कहीं मिलेगा तो हम उसको देखेंगे। बट यू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि इट विल बी पैरेललोग्राम लॉ। सूरज का नो आया है, किस चीज के लिए वो थोड़ा बता दीजिए। सूरज, समीर, आर्या, इनका थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। तो सूरज, आर यू एबल टू हियर मी? ये नो जो आया, क्या नो आया? सर यू आस्क्ड एनी डाउट? अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बढ़िया है। चलो आगे चलते हैं। हम यहाँ तक पहुंचे थे, अभी रिजोल्यूशन में चलते हैं। यहाँ ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। आपको रिजोल्यूशन में समझ में लाना पड़ेगा कि मैंने एक चीज आपको दिखाई थी। ये चीज मैं बोला कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है, मुझे इसको मतलब सोचिए कि ये चीज क्या है। ये चीज वो है कि ये इसका और इसका भाई है, जो अगर यहाँ P है और ये थीटा है, तो ये जो सपोज A है और ये जो B है, ये नथिंग बट P cos थीटा, P sin थीटा
ऐसे बनता है। कैसे? सिंपल ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल बनने से। तो मतलब ये थीटा था, तो भाई ये सामने वाली बाजू अपॉन ये पी, तो क्या आएगा? साइन थीटा विल बी, सामने वाली ये पी था ना, सॉरी, सामने वाली बाजू नहीं चाहिए अपने को, एडजेसेंट बाजू चाहिए। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाजू मतलब ए बाय हाइपोटेनियस मतलब पी, मतलब ए इज नथिंग बट, मतलब ये चीज जो है ए इज नथिंग बट पी कॉस थीटा, जो मैंने यहाँ लिखा, ये जो मैंने लिखा ये इसको एप्लीकेबल है। तो ये ऑटोमेटिकली पी साइन थीटा है। ये इसका रिजोल्यूशन है, इसको रिजॉल्व कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। मैं एक तिरछी लाइन खींचना चाह रहा था, मैं तिरछे डायरेक्शन में जोर लगाना चाह रहा था, बट मैंने बोला कि उस चीज को अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाऊं और वर्टिकल डायरेक्शन में लगाऊं जोर, तो मुझे उसका क्या क्या हिस्सा मिलेगा। तो ये वो हिस्सा है, इट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग द वेक्टर। ये यहाँ पे उन्होंने कुछ अलग तरीके से किया है, जो देख के आपको थोड़ा तकलीफ होगा। Vector can be written as a sum of two or more vectors along a certain fixed directions. Thus, a vector v bar can be written as a v1 bar or cap alpha, v2 cap beta, v3 cap gamma. Alpha, beta, gamma are the unit vectors, जिनको हम i, j, k भी बोल सकते हैं। v1, v2, v3 known as a components, मतलब scalar component of that particular unit vector, so that सबको साथ में जोड़ेंगे तो major component with its direction will be available, that is v. V bar along with the three direction alpha, beta, gamma or ijk, जो यूनिट वेक्टर है। The process of splitting the given vector into its component is called resolution of vector. मैंने वही किया व्हाइट बोर्ड पे, जो आपको यहाँ पे उन्होंने लिख के दिया है। The component can be found along, कैसे? ये देखिए यहाँ जो दिया है, direction at any required angles, but if these components are found along the directions which are mutually perpendicular, they are called rectangular components. जैसे यहाँ मैंने दिखाया, तो मैंने जो दिखाया था व्हाइट बोर्ड पे वो क्या था? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स था। तो यहाँ उन्होंने टू डायमेंशनल प्लेनर सिस्टम दिखाया, जिसमें हम जिंदगी भर पढ़ते आए। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, जो ग्राफ पेपर पे, प्लेन पेपर पे प्लॉट किया जाता है, और एक्स एक्सिस पे हम जो भी देखते हैं उसको हम सब्सक्रिप्शन आर एक्स आर पी एक्स ए एक्स ऐसे लिख देते हैं। वही हम वाई डायरेक्शन में वाई सब्सक्राइब कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रिजॉल्व करना चाहते तो कैसे आएगा वो बता रहे, पहले पढ़ लो डायग्राम को। खड़ा वाला वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस, जो कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है ओ ए, ओ बी एंड द रिजल्टेंट ओ सी। रिजल्टेंट इज मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ क्या है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि थीटा विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल हियर, क्योंकि हमको राइट एंगल ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टीज पता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज भी पता है। तो यहाँ वो एंगल पता भी नहीं होगा तो हमको मालूम है कि वो 90 माइनस थीटा है। किसका एंगल? बी ओ का ओ सी के साथ। तो उससे हमको कुछ मिलेगा जो हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। कंसिडर वेक्टर आर बार इज इक्वल टू ओ सी बार ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओरिजिन of a rectangular coordinate system shown in a figure 2.8. Drop perpendicular from C that meets the x-axis at A and y-axis at B. So OA को उन्होंने बोल दिया RX component, OB को बोल दिया RY component, RX bar, RY bar being the components of OC along x and y axis respectively. Then by law of parallelogram, we know R bar is nothing but RX bar plus RY bar. R bar is nothing but RX bar की जगह यूनिट वेक्टर इन द x डायरेक्शन इज I। थोड़ी देर पहले उन्होंने अल्फा बीटा गामा की बात की थी, मैं पहले ही बोला था इसको वो I लेने वाले हैं, तो उन्होंने I ले लिया। फिर उन्होंने उस चीज के साथ y डायरेक्शन वाले के साथ यूनिट वेक्टर j जोड़ दिया। I j are unit vectors along the x and y axis. Rx and ry are the magnitudes of the two components. Let theta be the angle between them. Then we know cos theta is Rx by R and sin theta is Ry by R. So Rx and Ry के वैल्यूज आ गए, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। मतलब अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को ब्रैकेट के अंदर रखूं और आर स्क्वायर को बाहर लूं, तो मैं दिखा देता हूं, तो फिर जिनको थोड़ा तकलीफ है उनको तकलीफ ज्यादा। ये चीज है कि उन्होंने बोला कि मैंने आर एक्स का स्क्वायर किया
प्लस आर वाई का स्क्वायर किया तो भाई एक्चुअली क्या किया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अगर मैं ये लिखा है और मैं इसमें से ये आर स्क्वायर बाहर लूं और साइन स्क्वायर थीटा लिखूं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूं, तो आप सबको पता है कि ये चीज एक होती है। मतलब यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, तो वो आर स्क्वायर बचाने के बाद ऑटोमेटिकली आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, मतलब आर इज इक्वल टू रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मिल गया, क्योंकि यहाँ एक चीज को भूलना नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये रेक्टेंगुलर सिस्टम चल रहा है, ये पैरेललोग्राम नहीं है अभी। ये राइट एंगल ट्रायंगल दो मिलने से जो पैरेललोग्राम नाम का रेक्टेंगल बनता है वो बन रहा है। तो सिस्टम थोड़ी आसान हो गई और वो कॉस कंपोनेंट वाली चीज यहां से हट गई। अभी इसी चीज में अगर हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन ढूंढना चाहते हैं तो काम और आसान है। क्या आसान है, gives the magnitude then find the direction, tan theta is ry by rx, मतलब tan theta is equal to cos theta upon sin theta upon cos theta। sin theta था ry by r और दूसरा था rx by r, तो r r चले गए तो ry by rx बचा and theta is equal to tan inverse of ry by rx हो गया। if r bar x, r bar y and r z are the rectangular component। अभी यहाँ आपको तकलीफ होगी क्या, इतना देर तक बात की इस चीज की। ये है भाई x, ये है भाई y, या इसको थोड़ा दूर ही लिख देता हूं मैं, इसको x बोल देता हूं, इसको y बोल देता हूं। अभी मुझे निकालना है छेद, तो मैं यहाँ दूर छेद लिख देता हूं। दो डायरेक्शन वाले चीज की बात की थी, अभी मैं बोल रहा हूं कि मुझे रिजल्टेंट निकालना है। अभी अगर मैं बोलूं कि मेरा रिजल्टेंट ये है तो मैं गलत हूं, क्योंकि जब रस्सी इस तरफ खींच रही है, जब रस्सी इस तरफ खींच रही तो कोई चीज इस तरफ जाएगी, सही है, बट इस तरफ भी तो कुछ खींच रहा है, तो उस तरफ खींचने वाले के लिए ये रिजल्टेंट सही नहीं है। वो रिजल्टेंट कहाँ है, इसके लिए ऐसे सोचो कि आपने ये बनाया, ऐसे सोचो आपने ये बनाया, अभी कुछ बनना बाकी है और वो है ये। तो अभी भी कुछ बनना बाकी है और वो है ये जो डब्बा बना, इस डब्बे में अगर ये चीज मैं दिखाऊं कि यहां से रिजल्टेंट शुरू हुआ और यहां से गुजरा, ये आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, इन दो चीज के बीच में मैं एक चीज डाल रहा हूं, जो अगर यहां से गुजरे तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट। ये 2 डायमेंशंस में इमेजिन मत करिए, अभी इसको इमेजिन करने के लिए घर के अंदर जो भी एक रेक्टेंगुलर टाइप का, मतलब क्या बोलेंगे आप उसको, रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड क्या बोलते हैं वो डब्बा, जो पहले तेल का डब्बा वैसा आता था, आजकल क्या चीज वैसे आती है, चौकोनी डब्बा, कोई भी पकड़ लीजिए, बिस्किट का डब्बा, केक का डब्बा वगैरह आता होगा, उसके एक एंड से अपोजिट डायरेक्शन में निकलने वाली चीज आर है। पहले वाले में अगर आप देखते तो आपको समझ में आता कि जब एक्स वाई की मैं बात कर रहा था तो रिजल्टेंट ये था, एक्स जेड की बात कर रहा था तो रिजल्टेंट ये था, वाई जेड की बात कर रहा था तो रिजल्टेंट ये था। बट जब मैं इसकी रिजल्टेंट की बात कर रहा हूं तो कुछ और डायरेक्शन में जा रहा है और वो है ये। इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ी तकलीफ करनी पड़ेगी जो उन्होंने यहाँ की है। If we are talking about Rx, Ry, okay. But if we are talking about Rx, Ry and Rz, rectangular components of R bar along the X, Y and Z axis of the rectangular Cartesian coordinate system in 3-dimensional, then R bar is Rx plus Ry bar plus Rz bar with unit vector Izk. R is which will be Rx into R, unit vector I in plus Ry plus unit vector J plus Rz into unit vector K. और
r bar modulus, which is representing only magnitude part, is nothing but rx square plus ry square plus rz square. If two vectors are equal, टॉपिक बदल गया. ओके, नहीं तो आप सोचोगे वही कंटिन्यू है. हमने 2 डायमेंशनल में बात की, अभी हम 3 डायमेंशनल में बात किए. उसके लिए हमने इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया और चैप्टर का ये हिस्सा यहीं पे रुक गया. नाउ दे आर गेटिंग इनटू सम न्यू कॉन्सेप्ट. ये क्यों ऐसा करते हैं मुझे नहीं समझ में आता, बट ऐसा ही है. नाउ दे आर सेइंग if two vectors are equal, it means their corresponding components are also equal. If a bar is equal to b bar, then axi plus ayj plus azk is equal to bxi plus byj plus bzk. Then x is equal to bx, ay is equal to by and az is equal to bz. अगर गलती से कभी सवाल पूछा जाए कि फलाना फलाना दो वेक्टर सेम है क्या, तो आपने मैग्नीट्यूड निकाली, उसको कंपेयर किया, सेम आया, फिर भी अगर कंपोनेंट सेम नहीं है तो आपको बोलना है दे आर नॉट इक्वल. ये आगे आपको शायद बताएंगे. फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 3i plus 4j. क्या करना है? कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड के लिए अंदर लेके उन जो स्केलर क्वांटिटीज है उनका स्क्वायर करना है. सो उन्होंने किया. वी बार इज इक्वल टू वी बार मॉड्यूलस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 16 25 इज इक्वल टू 5. अभी बोल रहे हैं इसका एंगल निकालो, तो एंगल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है. एंगल निकालने के लिए वी बार इज नथिंग बट अल्फा इंटू मॉड्यूलस. अल्फा क्या है? अल्फा इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वी बार. तो यूनिट वेक्टर अलोंग वी बार क्या होगा? आई बार एंड जे बार. तो वी बार विच इज नथिंग बट 3i बार प्लस और 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5. मतलब क्या है? अगर मुझे ये 3i प्लस 4j, ओके ठीक है, अगर मुझे ये 3i प्लस 4j ये मेरा अगर v बार है, तो इसके पीछे मुझे v मॉड्यूलस डाल दूं तो इसके पीछे आ जाएगा √25, मतलब 5, मतलब ये चीज जो उन्होंने करके आपको इधर दिखाई है, जो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल. गिवन a बार इज दिस, b बार इज दिस, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स? सिंपली यू नो, दोनों का 1 का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर, तो √5 आ गया. b के लिए 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो फिर से √5 आ गया. तो लगता तो है मैग्नीट्यूड देख के कि दोनों वेक्टर्स इक्वल है, बट आर दिस टू वेक्टर्स के लिए सिर्फ इतना चलेगा क्या? नहीं, क्या चाहिए आना? सेम. The magnitudes of a bar and b bar are equal, however their corresponding components are not equal. ax है 1 and bx है 2, ay है 2 और by है 1. So hence two vectors are not equal. तो हम पहुंचे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर. उसमें जाने के पहले हम देखेंगे कि आपके कुछ सवाल है क्या. मीटिंग किधर गया? मीटिंग क्यों नहीं है? मैं मीटिंग में हूं कि नहीं? चैट बॉक्स में कुछ है तो लिखिए. मैं सर यू आस्क इन, ओके सर खत्म हो गया इधर तक. Anybody has got any doubt? We are left with another 10 minutes. We will start with a new topic. but उसके पहले मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि यहाँ तक जो थोड़ा सिंपल बट मैथमेटिकल वाला और थोड़ा ब्लैक बोर्ड के साथ आसान होता है, ऐसा वाला पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं. सो मैं सूरज और बाकी सब लोगों से पहले प्रेजेंट कितने लोग हैं? सब लोग प्रेजेंट है. तो प्रेजेंट लोग भाई बोलो. आई डिड नॉट गेट समथिंग. कौन है? I did not get the second part of example 1. Second part of example 1. कौन है ये? संकल्प. Okay, संकल्प. Wait. I did not get second part of example 1, example 2.4. अच्छा. Find a unit vector in the direction of
द वेक्टर 3i। हमने सीखा कि किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर के मामले में, तो हम सिंपली एक चीज करते हैं कि उसको इस तरीके से आर एक्स स्क्वायर, उसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जेड कंपोनेंट, तो ये तो 2D सिस्टम है। तो हमने 3 को उठाया, 4 को उठाया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 आ गया, तो मैग्नीट्यूड 5 मिल गया। अभी हम डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं? तो डायरेक्शन के लिए सिंपली हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये जो चीज है वो हम लोग करते हैं। बट ये किस मामले में? जिस मामले में हम उसको स्केलर फॉर्म में लाए। वेक्टर फॉर्म में क्या करना है? नथिंग, मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय दी इट्स बेसिक कंपोनेंट विच इज मॉड्यूलस, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो यहाँ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, ये हमारा वेक्टर था ये, और उसको हमने रिजल्टेंट से डिवाइड किया। तो 3/5 यूनिट वेक्टर आई के डायरेक्शन में और 4/5 यूनिट वेक्टर जे के डायरेक्शन में, ये दो कंपोनेंट जब मिलेंगे तो उससे हमको वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी मिल जाएगा। दैट इज व्हाट दे सेड। अभी आप बोलोगे इसमें कुछ इस तरीके की चीजें पूछी जाती है क्या? 100% पूछी जाती है, और वो इसी तरीके से रहेंगी, तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। ओके, एनीवे ये सेड। ओके, सो वी विल गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। Multiplication of vector. We saw that we can add or subtract vectors of the same type to get resultant vectors of the same type. However, when we multiply vectors of the same or different types, we get a new physical quantity which may either be scalar और मे बी वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ दो नए टर्मिनोलॉजीज आपके लिए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसको आपको जिंदगी भर तकलीफ देने का हक है। एंड दैट तकलीफ देने वाली चीज है वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, थोड़ा आसान है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। Also note that the multiplication of the scalar with a scalar is always a scalar and a multiplication of the scalar with a vector is always a vector. Let us now, ये समझ में आया? वेक्टर के साथ कोई जुड़ गया तो भाई वेक्टर हो गया, स्केलर के साथ स्केलर कितना भी जुड़े तो स्केलर ही रहेगा। बट स्केलर के साथ वेक्टर जुड़ गया तो वेक्टर हो जाएगा। लेट अस नाउ स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट आज खत्म करते हैं क्योंकि आसान होता है। Scalar product or dot product of the two non-zero vectors p bar and q bar is defined as the product of the magnitude of the two vectors and cosine of the angle theta between the two vectors. The scalar product p bar and q bar is written as p bar dot q bar, that is dot product is equal to magnitude of p q and into the cos theta. ये हमने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा, उसी का एक एक्स्ट्रापोलेशन और एक्सटेंडेड वर्जन है। Characteristics of the scalar product. The scalar product of the two vector is equivalent to the product of the magnitude of one vector with the magnitude of the component of the other vector in the direction of the first vector. देखिए क्या दिया है कि p बार एक है, q बार एक है और बीच में थीटा है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ड्रॉ भी किया था कि ये q cos थीटा है, वो p cos थीटा है, वो p sin थीटा है, ये q sin थीटा है। तो इस तरीके से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो P बार Q बार इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल के डिटेलिंग से आएगा। एंड P इंटू क्यू कॉस थीटा मतलब P इंटू कंपोनेंट ऑफ Q बार इन द डायरेक्शन ऑफ P। ये समझे आप कि मैं जो थोड़ी देर पहले एक तिरछी लाइन ड्रॉ करके उसके मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट जो निकाले, उसी तरीके से ये बोल रहा है कि एक P बार है तो P बार इंटू Q का P के डायरेक्शन में और कंपोनेंट ऑफ Q इन द डायरेक्शन ऑफ P विल रिप्रेजेंट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ देम। वही Q का भी उन्होंने बोला, तो ये इसके लिए उन्होंने पहला सेंटेंस बनाया, स्केलर प्रोडक्ट द टू वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। ये समझा कि नहीं? पहले जाओ तो चैट बॉक्स में। बहुत लोग समझा कि नहीं? कुछ लिखो चैट बॉक्स में, यस और नो लिखो एटलीस्ट चैट बॉक्स में कि मैं मीटिंग से बाहर हो गया, मैं हूं कि नहीं? सूरज मस्के नो, अथर्व यस। अथर्व कब ज्वाइन किया? चलो यार, अथर्व बीच अटेंड कर ही लिया लेक्चर, तो समीर वूपी को यस लगा, सूरज को समझा नहीं, तो मैं समझा देता हूँ। 2 मिनट दो मुझे सूरज। आई वॉज टॉकिंग टू यू कि सपोज ये एक कंपोनेंट है, तो मैंने बोला कि मैं इसको डिवाइड कर दूंगा ऐसे,
मुझे ये निकालना है जिसको मैंने बोला था P, और मैंने बोला ये थीटा है, तो मैंने तुम लोग को इमीडिएटली बोला कि ये P cos थीटा हो गया, है ना, सॉरी, और ये P sin थीटा हो गया, ट्रायंगल लॉ भी अप्लाई करके बताया। अभी मुझे ये चीज का, सॉरी, ये चीज का कुछ भी लाना है, तो मुझे, या मुझे ये चीज का कुछ भी लाना है, तो मुझे ये लेना है, और इस डायरेक्शन में जो इसका हिस्सा है वो लेना है। यहाँ वो ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, इसका और इसका हिस्सा मिला के ये बन रहा है। बट अगर मैं जब उस डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो उसमें उनको यही एक्सपेक्टेड है कि इस डायरेक्शन में जाने वाला हिस्सा जो है P cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कोई और सपोज x होता, तो इन दोनों का मिलाप मतलब इस डायरेक्शन में जाने वाला स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर्स। ये वो यहाँ बताना चाह रहे हैं, जो उन्होंने वहां पे आपके किताब में अच्छे से बताया है। ओके, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्विवेलेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। तो भाई Q cos थीटा है तो उसके साथ P जोड़ दिया, क्योंकि P यहाँ है, तो P इंटू क्यू cos थीटा इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट, या फिर Q इंटू P cos थीटा, मतलब ये दोनों, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, या ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। फिर सेकंड, स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ, बताने की जरूरत नहीं है, हमने शुरुआत में ही सीखा था। देन दे विल बी सेइंग इट विल बी स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी बताने की जरूरत नहीं। स्पेशल केसेस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट P डॉट Q इज इक्वल टू P Q cos थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा 0 हो जाए तो cos थीटा 1 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली P डॉट Q इज P Q cos थीटा इज इक्वल टू PQ। thus two unit vectors I into I cap into I cap, J cap into J cap and K cap into K cap is 1, means I square J square K square is 1। ये प्रॉपर्टी हम बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं, वो यहां से आई डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर्टी से, कि भाई स्पेशल केस है जब P डॉट Q, जब यहां दिखा देता हूं मैं, हमने यहां बोला कि P डॉट Q, ये बार बार कर रहे हैं, तो हम P इंटू Q इंटू कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा में थीटा जैसे ही 0 हो गया तो कॉस थीटा हो गया 1, मतलब सीधा ये 1 हो गया, तो ये P बार Q जो है PQ हो गया। बट ये P बार अगर यूनिट वेक्टर I है, ये भी यूनिट वेक्टर I है, तो ये दोनों मिलके जो I स्क्वायर हुआ वो यहाँ I स्क्वायर हुआ, मतलब एक्चुअली ये सारी चीजें जो है वो 1 हो गई। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ जो दिखाई दे रही है ये बहुत इस्तेमाल होने वाली है। तो एग्जैक्टली 8 के आसपास हम पहुंचे, तो पक्का याद रखिए कि पेज नंबर 22 पे हमने रोका था। 22 के बाद एक 23 नंबर का पेज है, जहाँ पे क्या पढ़ने वाले, नजर घुमाते, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। फिर हम 24 पेज पे क्या पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, जैसे अभी डॉट प्रोडक्ट की पढ़ी। और फिर हम पढ़ने वाले हैं कुछ उदाहरण, इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, मतलब डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन, एवरेज रेट ऑफ चेंज जो डेरिवेटिव्स में आता है, ये हो गया पेज नंबर 26। और फिर फाइनली इंटीग्रल कैलकुलस जो इंटीग्रेशन की बात है, और उसके बाद इंटरनेट माय फ्रेंड आ गया, मतलब शायद चैप्टर खत्म हो गया। तो वी आर ऑन पेज नंबर 22 और 29 पे खत्म हो रहा है, तो 7 पेजेस बचे हुए हैं। तो सॉरी, वी आर हियर 22, तो अगली बार हम यहाँ पे शुरू करेंगे। ओके, बट आई विल लेट्स नॉट गेट आउट ऑफ दिस क्लास इमीडिएटली, थोड़ा आपका कुछ डाउट्स है तो मैं देखना चाहता हूँ। So let's get surveying about log table। अरे वाह, सूरज मस्के बहुत अच्छा पूछा। ओके गुड, तो सूरज ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, लॉग टेबल्स कब लेंगे। पहले तो ये बताओ जरा चैट बॉक्स में कि लॉग टेबल है आपके पास, लिखो लिखो फटाफट।
यस नो लिखो। सूरज के पास नहीं है, सूरज डाउनलोड कर लो। ये सब चीज आप बच्चे लोग को बहुत अच्छे से आता है। मार्केट में सब कुछ फ्री में मिलता है, आपको लेने की क्षमता और इच्छा होनी चाहिए। इंटरनेट पे आपको कहीं ना कहीं बहुत सारा मिल जाएगा मटेरियल, और लॉक टेबल नीचे ले लीजिए। लॉक टेबल को आप इंटरनेट के द्वारा सीखने की कोशिश करिए, तो जब हम लोग लेंगे तो आपके लिए आसान होगा। बाकी लोग, समीर भी बोल रहा है नो, सूरज भी नो, नहीं सूरज ओके बोला, संकल्प यस बोला। सबके लिए कॉमन वर्क, लॉक टेबल डाउनलोड कर लीजिए, इंटरनेट पे कहीं मिल जाएगा। कहीं भी अकाउंट नंबर वगैरह नहीं देना है मम्मी डैडी का बेवजह का। डाउनलोड कर लीजिए, इंटरनेट का ही इस्तेमाल करके उसको सीख लीजिए। जो चीज नहीं आएगी वो एक आधा क्लास सर लोग खुद ले लेंगे, शंकर सर या मंगलम सर, और आपको लॉक टेबल समझा देंगे। जरूरत पड़ी तो मैं भी आ जाऊंगा। ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। डाउनलोड लॉक टेबल्स फॉर द नेक्स्ट यूज, एंड फिर हम टाटा बाय बाय बोल देते हैं। ओके, shall we stop here? Thank you. चलो बाय बाय, you can leave the class. चलो बाय बाय, थैंक यू।